अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I clear and audible? Someone please confirm. Yes. All right. Inshallah, we'll begin today the 40th session of our Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we concluded जब Abdullah bin Ubay उसका कत्ल हुआ था by his own son Abdullah radiyallahu anhu, and we'll continue with the incident of the slander. This extremely painful incident took place on the Prophet's return from the expedition against Bani Mustaliq. The Muslim army halted for the night at a place which was a short distance from Medina. In this expedition, the Prophet Muhammad ﷺ was accompanied by his noble wife Aisha radiyallahu anha. In the series of expedition and invasions, अभी हम लोग एक बहुत important incident की तरफ जा रहे हैं. And I'm sure you guys are pretty aware, जहाँ पर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को स्लैंडर किया गया था, उन पे इल्जाम लगाया गया था. This is that Bani Mustaliq wala, you can say the expedition. So it used to be one of the things that Nabi sallallahu alaihi wasallam, he wanted to be fair. So every time during his expeditions and his journeys, वो एक ना एक अपनी wife को जो है अपने साथ लेकर जाया करते थे. In Bani Mustaliq, it was the turn of Aisha radiyallahu anha. So what exactly happened during this incident? That is what we are going to understand. As it so happened, Aisha radiallahu anha went some distance from the camp to attend to the call of nature. When she returned, she discovered that she had dropped her necklace somewhere. The necklace itself was of no great value, but as it had been loaned to her, Aisha radiallahu anha went out again to search for it. On her return, to her great grief and sorrow, the army had already marched away with the camel she was riding. ऐसा हुआ कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा, she wanted to go to attend the call of nature. She had to go to the washroom. तो वो एक थोड़े डिस्टेंस पे गई. As I had explained you yesterday also कि इन लोगों का दूर दराज में एक येलो एरिया होता था जहाँ पर जाके they used to attend the call of nature. So she also went somewhere far off and उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था. It is not that कि the necklace was of very great value, but it was kind of a loan necklace. That's why it was important to her. अब हुआ ये कि वो उधर गई और उधर उनका जो नेकलेस है, जब when she came back, she was like worried because the necklace was no longer there. उनके गले से कहीं पर गिर गया था. तो she went back and again she's searching for it. अब ये जगह already दूर थी and by the time ये hunting और searching का जब मामला चला तो she lost lot of time there, and by the time she came back तो the army had already marched because they had a particular time. Every time they used to go, आपको पता है caravans जो है बहुत दिन लगाते थे और लंबे लंबे उनके distances होते थे और इतने सारे लोगों के साथ चलना and the things that they used to carry, the load and stuff. So they had very limited stops. तो वो limited stops के अंदर people used to get chance to freshen up, go for the call of nature or just stretch themselves out. अब ऐसा था कि ये लिमिटेड टाइम के लिए रुकते हैं और फिर उसके बाद वो काफिला फिर से जारी हो जाता है. अब इस चक्कर में बिकॉज शी डिडंट टेल समबडी दैट शी वाज आउट एंड व्हाटएवर द तरीका कार इज, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी आल्सो गो फॉर उम्रा और सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, दैट इज हाउ वी फंक्शन कि अगर आप कहीं जा रहे हो, इफ यू आर ब्रेकिंग फ्रॉम द ग्रुप, देन यू विल टेल समबडी दैट यू आर अवे. बट समथिंग हैपेंड, एज यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द कदर एंड ऑफ द डे. तो शी वाज लेफ्ट आउट. अब ये ऐसा हुआ कि व्हेन शी केम बैक, देन उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है, एवरीबडी हैड गॉन. और उनका जो कैमल था जिसके ऊपर she was riding, even that was not there. Nobody was there. Literally people had left. Her attendants had thought that she was in the howdah. यानी जो उनकी पालकी या जो उनकी सवारी थी, उनके attendants जो थे उनको लगा था कि she was there, because as we all know that she was very thin and young and light in weight. तो अगर वो बैठी है या नहीं बैठी है उसका अंदाजा उन लोगों को नहीं पड़ा और इस वजह से उनके अटेंडेंट्स और उनके जो साथीदार थे सबको ये लगा कि she was still sitting inside. अब ये हुआ कि she was helpless. She was totally helpless. So what she did, she sat there and she cried until sleep overpowered her. अभी अकेली लड़की, what can she do? So what she did, she was sitting there where she was left out and she was crying and crying. और फिर उसके बाद उन पे नींद जो है वो तारी हो गई. So she slept. सफवान बिन मुताल रदियल्लाहु अन्हा, an immigrant, एक मुहाजिर जो थे उनके साथी साहबा, सफवान बिन मुताल, he was coming in the rear, recognized her.
अभी इनका ऐसा होता था कई बार कि वो एक आदमी को पीछे रखते थे बिहाइंड द काफिला, कि कहीं पर भी कोई रुक जाए या कोई उनका सामान छूट जाए या कुछ हो जाए तो somebody would be there to pick that up, यानी somebody at the rear. तो वो सफवान बिन मुतार रदियल्लाहु अन्हु जो थे, वो मुहाजिर थे, वो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया. As he had seen her before, the verse enjoining the veil was revealed and brought her on his camel to Medina, himself walking behind the animal. अब उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया. फिर उसके बाद उन्होंने अपने कैमल पर राइड दे दी और वो खुद पीछे चलने लगे. The Munafiq of Medina, led by Abdullah bin Ubay ibn Salul, sought to make an incident out of this and spread a wicked scandal against Aisha radiallahu anha, and unfortunately some of the Muslims also became involved in it. अभी जैसे हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि the mushriks and the munafiq and the yahud, ये सारे जो हैं मैदान जंग में मुसलमान आर्मी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे. बट नाउ देयर मोडस ऑपरेंडी वाज कि वो लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम आर्मी और मुस्लिम नेशन के लिए करें. तो एक उन लोगों ने पहले एक उन्होंने ट्राई किया था जिसके बारे में हमने कल पढ़े थे, और उसके बाद आज सेकंड उन लोगों को एक मौका मिल गया था, ये आयशा रदियल्लाहु अन्हा का इंसिडेंट, जिसको लेकर उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेशन करना शुरू किया. अब प्रॉब्लम ये था कि इसमें मुनाफिक तो मिले हुए थे, बट सम ऑफ द मुस्लिम्स आल्सो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे. इन मदीना the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had counsel with some of his companions who pronounced different opinions ranging from divorce to retention. अभी एज यूजुअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीकाकार होता था वो सलाह मशवरा करते थे, काउंसिल बिठाते थे. तो उन्होंने अपने क्लोज जो हैं उनके साथ काउंसिल बिठाई एंड देन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग कि व्हाट शुड बी डन विद दिस इंसिडेंट, क्योंकि लोग जो है काफी लान तान करने लगे, काफी बदनामी होने लगी और प्रोपगेशन नेगेटिव होने लगा. तो व्हेन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द सहाबाज, द क्लोज सहाबाज, काउंसिल की जो राय थी वो डिवोर्स से लेकर रिटेंशन तक वेरी करने लगी, यानी देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस दैट वाज बीइंग डिक्लेयर्ड. The incident almost roused a fight between the two rival factions, Al-Aus and Khazraj. यानी ये मामला क्योंकि कैरेक्टर को रिलेटेड था एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के रिलेटेड था एंड अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बेटी के लिए रिलेटेड था. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द बिग हेड्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस. तो इतनी हद तक के इसमें डिस्कशन और राइवलरी होने लगी कि बिटवीन औस एंड खजरज एक अच्छी खासी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स होने लगी. But Prophet's intervention silenced both parties on the spot. And then Alhamdulillah, with the wisdom of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he intervened immediately और उन्होंने दोनों पार्टियों को silent कर दिया. Aisha radiallahu anha, unaware of the rumors being circulated about her, fell ill and was confined to bed for a month. अभी Aisha radiallahu anha is totally innocent, Alhamdulillah, and she was not aware के what is going on. यानी ये इतनी बात का जो है इतना बड़ा बतंगड़ बन गया. शी वॉज अनअवेयर ऑफ इट एंड शी वॉज नॉट कीपिंग वेल. सो ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ वो बेड पे कन्फाइन हो गई थी, बिल्कुल यानी बेड रिटर्न हो गई थी एक महीने के लिए. On recovering, she heard of the slander and took permission to go to see her parents to seek authentic news. जब उनको एक महीने बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने क्या किया, when she came to know कि इतनी बुराई और बदनामी चल रही है, तो उन्होंने परमिशन ली and she went to her parents' place ताकि अपने मैके में जाकर उन्होंने authenticity of this news को इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने इजाजत ली. She then burst into tears and stayed for 2 days and one sleepless night, ceaselessly weeping to such an extent that she felt her liver was about to rip open. अभी एक इनोसेंट फीमेल है और उनके बारे में अगर इस तरीके की बातें हो एंड शी बिलोंग्स टू सच अ नोबल फैमिली एंड शी बिलोंग्स टू सच अ नोबल पोजीशन मैन, तो वो सुन के वो समझ के एंड देन नोबडी इज सपोर्टिंग हर, मतलब देखा जाए तो नोबडी इज ऑन हर साइड, लिटरली नोबडी इज ऑन हर साइड, ना तो उनके पेरेंट्स ना तो उनके हस्बैंड, एंड शी इज लेफ्ट आउट अलोन. सो शी वाज what was her action? जो चीज हम लोग हर बार हर सेशन में डिस्कस करते हैं कि लोग जो है ना, वो आप कितना भी लोगों के लिए, इंसानों के लिए आप कर लें, जितना भी आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लें, बट जब क्राइसिस और ट्रॉमा होता है, except Allah Azza wa Jal, nobody is going to come to your rescue. And similarly, this happened with her. Nobody confided in her, nobody supported her, nobody gave her the moral boost. किसी ने भी, यानी हस्बैंड से लेकर पेरेंट्स से लेकर कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं हुआ. एंड दैट वाज द रीजन शी बर्स्टेड इनटू टीयर्स. और तकरीबन 2 दिन and one night sleeplessly, ceaselessly, she was weeping and weeping and weeping. इतना रोई वो कि उनको लगा कि उनका लिवर जो है, कलेजा जो है, वो रिप ओपन हो जाएगा.
The Prophet visited her in this situation, and after testifying to the oneness of Allah, he told her, if you are innocent, Allah Azza wa Jal will acquit you. Otherwise, you have to beg for his forgiveness and pardon. He is always in his role. Not that he is not a very soft and a kind husband. Not that he is not supporting her. But he always has a stance. उनका एक neutral stance होता है. And he also gives तरजीह to Allah Azza wa Jal. तो उन्होंने भी उनको क्या statement बोले? उन्होंने कहा कि अगर आप innocent हो, तो Allah subhanahu wa ta'ala will be there for you. Don't worry about it. But if you are not, then आपको जो है, you have to beg his forgiveness, and inshallah Allah Azza wa Jal will forgive you. She stopped weeping and asked her parents to speak on her behalf, but they had nothing to say. Ab she's listening to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then she asked her parents कि वो intervene करे या उनके behalf में बोले कुछ, but they also said nothing. So she herself took the initiative and said, फिर उन्होंने अपनी दफा में उन्होंने कहना शुरू किया, if I were to tell you that I'm innocent and Allah subhanahu wa ta'ala knows that I'm surely innocent, you will not believe me. And if I were to admit something of which Allah knows that I am innocent, you will believe me. So there is nothing for me and you except the words of the father of Prophet Yusuf alayhi salam. और फिर कुरान की जो आयत surah number 12 verse 18. So for me patience is more fitting, and it is Allah alone who can be sought against that which you assert. तो उन्होंने क्या किया, आयशा आप देखें सबका कैरेक्टर देखें, सुभान अल्लाह, भले अपनी बेटी हो, बीवी हो, सबसे करीबी हो, बट nobody is vouching and everybody is shifting the matter to Allah Azza wa Jal कि अगर हक है, अगर सच है, अगर सही है, तो अल्लाह Azza wa Jal का जो है फैसला वो आएगा, definitely आएगा, and nobody is taking the onus here. And then she is also saying the same thing. She is saying कि अगर मैं innocent हूँ तो Allah knows, and even if I have done something then also Allah knows. तो मेरे पास क्या है कहने के लिए, मेरे पास सिर्फ ये कलिमात है, कुरान के कलिमात. And then she recited the verses 12, surah number 12 verse number 18 कि जो फादर ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो उन्होंने सब्र वाला जो है कलिमात from the Quran, she recited that. She then turned away and laid down for some time. At that decisive moment, the revelation came acquitting Aisha radiallahu anha of all the slanderous talk fabricated in this concern. Aisha radiallahu anha was of course wholeheartedly joyful and praised Allah Azza wa Jal with gratitude. यानी सब मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द हो गया, शौहर के तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से, और जिसके ऊपर इल्जाम लगा जा रहा है उनके तरफ से, every matter, every angle से has been pushed towards Allah Azza wa Jal. Now immediately subhanallah wahi nazil hui, and Allah is supporting her with the ayah from Surah 24 verse number 11. Verily those who brought forth the slander against Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet, are a group among you. यानी आप देखें, again the intervention of Allah Azza wa Jal is so strong and so prompt. एंड इससे बेहतर और क्या हो सकती है कि आपने अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया, आपका कोई गवाह नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई विटनेस नहीं. द ओनली विटनेस, द ओनली एविडेंस इज व्हाट? अल्लाह अज़्ज़ा व जल. एंड इमीडिएटली ही इज रिस्पोंडिंग. सुभान अल्लाह, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? दिस इज आल्सो अनदर रीजन फॉर अस टू से दैट दीस पीपल वर सो बिलवड, कितने ज्यादा अजीज थे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए, दैट ही यूज्ड टू इमीडिएटली रिस्पोंड एंड रिएक्ट एंड गिव हिज verdict on the spot. The principal people who were involved in the slander were Mistah bin Athaltha, Hassan bin Thabit and Hamna bin Jash, were flogged with 80 stripes. यानी इनके ऊपर जो इल्जामात हुए थे, definitely it's a character assassination. Character assassination is not a small thing. किसी के किरदार के ऊपर, किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना, ये बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है. और हमें इसमें से एक लेसन, इट इज एवरी चैप्टर, एवरी इंसिडेंट हैज अ लेसन फॉर अस. हमारे लिए क्या इंसिडेंट ये सिखाता है? 2-3 बहुत मोटी मोटी बातें जिसे हमें बिल्कुल सोच समझ के अपने साथ रखनी है. नंबर 1, हमारा तवक्कुल इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल. ओके. नंबर 2, ऑलवेज प्ले सेफ. You have to play safe. There will be incidents. ऐसे कुछ इंसिडेंट होंगे जो हमें दिखाई अगली दिखते हैं, जो हमें दिखाई ऐसे नजर आते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कई बार आंखों से देखी हुई चीज या कानों से सुनी हुई चीज भी गलत हो सकती है. It might appear different to us, it might appear ugly to us, but हम लोग एज अ मुस्लिम्स जो है ना, हमें अच्छा गुमान रखना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें पहले अच्छाई को तरजीह देनी है, बुरा, नेगेटिव, ईविल, गुनाह वाली चीजों की तरफ बाद में जाना है, पहले हमको उसकी पॉजिटिविटी देखनी है. यानी मसलन अगर हम देख रहे हैं कि कुछ हुआ है इस तरीके का, शी वाज लेफ्ट आउट, और एक जो है साहबा उनके साथ आ रहे हैं, ही इज नॉट सिटिंग विद हर,
शी इज राइडिंग द कैमल, ही इज वॉकिंग बिहाइंड, लेकिन वो झुंड से अलग हो गई थी। तो इमीडिएटली लोगों ने उनके ऊपर आगे की स्टोरियां बनाना शुरू कर दी। नोबडी आस्क्ड हर, नोबडी आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। उन्होंने अपनी अपनी स्टोरियां अपने अपने दिमाग से बनाने, दो और दो को उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। ये काम बहुत कॉमनली होता है लोगों के साथ, और ये काम अस्तगफिरुल्लाह लाजिम हम भी कई बार हम लोग गफलत में कर देते हैं। हमारे मुंह से कई कलिमात ऐसे निकल जाते हैं जो हमें लगा कि एवं ही हमने बोला है, बस ऐसे ही बोल दिया हमने, लेकिन किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन वी आर जजिंग पीपल। हमें कोई हक नहीं हम किसी को जज करें, हमें कोई हक नहीं हम किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करें। मैं तो यहां तक कि आपको कहूंगी कि अगर कोई कंफर्म कोई बंदा किसी गलत काम में है, तब भी आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको स्लैंडर करें। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हुस्ना, वी आर टॉकिंग अबाउट आयशा रदियल्लाहु अन्हा's स्लैंडरिंग केस। बनी अल मुस्तलक एक एक्सपीडिशन था जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदियल्लाहु अन्हा को लेकर गए थे। वो जो फेमस नेकलेस वाला किस्सा है ना, हम वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। So what I was telling you is that we don't have to be judgmental. हम लोग जो है किसी के भी बारे में, किसी के भी कैरेक्टर के बारे में, किसी के भी नेचर के बारे में, किसी के भी सिचुएशन के बारे में हमें जज नहीं बनाया गया है। वी आर नॉट इन चार्ज ऑफ अकाउंटिंग। इनफैक्ट हम हमारे मुंह से कोई बात हम कर लेते हैं तो उसका जो कहते हैं ना, बिला वजह बैठे बैठे अपने ऊपर हम गुनाह अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। नेवर डू दैट। खास तौर से कैरेक्टर के बारे में किसी के भी, आपको कोई हक नहीं कि आप किसी के बारे में कोई जजमेंट पास करें। किसी की सिचुएशन के बारे में जब तक आप उनसे बात ना कर लें, अगर आप सही में उनके खैर ख्वाह हैं, टॉक टू द राइट पर्सन। जो डायरेक्ट पर्सन इन्वॉल्व है, यू कैन टॉक टू देम। यहाँ वहां बात करने से, दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करने से, गॉसिप करने से, स्लैंडर करने से आप सिर्फ अपने लिए बवाल क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज जबान जो है दैट कैन टेक यू ईदर टू हेल और टू हेवन। बी वेरी वेरी श्योर। और ये सारे मामलों में जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना, कि किसी की बेटी के बारे में, किसी बहन के बारे में, किसी की वाइफ के बारे में, किसी के आदमी के बारे में आपको कोई गॉसिप, कोई स्लैंडरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स जहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड सिली स्टेटमेंट घर खराब हुए हैं। सो आई वुड अगेन अर्ज, मेक श्योर व्हेन एवर यू ओपन योर माउथ, थिंक अबाउट इट। ये बात मैं कर रही हूँ, क्या इससे मुझे दुनिया में फायदा होने वाला है, आखिरा में फायदा होने वाला है? इज इट गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट? टेक अ पॉज एंड देन ओपन योर माउथ। Second, first I said is to play safe, तवक्कुल इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड टेकिंग केयर ऑफ योर टंग्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। Secondly, if a situation arise and you have no one on your side, normally as I said, moment of crisis में nobody will be there. सारी जो दुनिया है वो खुशी की साथी है। आप जब तक एंजॉय कर रहे हैं, everybody is having a very good time with you, they will party, they will have a fun time with you. But the moment trauma or crisis strikes you, nobody is going to take your side. Which is the entity? कौन सी वो एंटिटी है जो आपके साथ आपकी सपोर्ट करती है? वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सो रादर देन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेक दुआ, जितनी दुआ कर सकते हैं आप करें। आई टोटली अंडरस्टैंड हमारे लिए कोई वही नाजिल होने का सिलसिला नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टिल कैन सपोर्ट यू एंड कम इन योर फेवर इफ यू आर इनोसेंट। And even if you are not innocent, I wouldn't say, I don't want to rule out that we are human beings. There are times when we can commit mistakes. At that point of time, solution क्या दिया गया है? Seek forgiveness. Even if you have committed something, seek forgiveness. And Allah Azza wa Jal, inshallah, because He's Rahmanur Rahim, He's Ghafurur Rahim, He will forgive you. So these are the lessons that we are supposed to take from this particular incident. अब वो जो तीन जो इन्वॉल्व थे, मिस्ता बिन अफला, हसन बिन साबित एंड हमना बिन जाश, उनको 80 स्ट्राइप्स यानी उनको 80 कोड़े मारे गए बिकॉज दे डिड द स्लैंडरिंग, जो कि झूठ था। एज फॉर द मैन हु टुक द इनिशिएटिव, Abdullah bin Ubay, he was not flogged either because the physical punishment of this world would have been a substitute for the chastisement that would be in store for him in the hereafter, which he did not deserve, or for the same public interest for which he was not killed previously. However, he became the object of criticism and humiliation after his real intentions were exposed to the public. अभी ये तीन जो थे, मेन तो अब्दुल्ला बिन उबई था, because as you know he was the head of the hypocrite. उसके साथ ना तो उसको कोई फिजिकल पनिशमेंट दी गई थी, ना तो उसको जैसे पहले भी उसको मारा नहीं गया था, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ही वाज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द मुनाफिक्स, और उसकी एक हायर पोजीशन थी, एंड दे डिडंट वांटेड टू क्रिएट अ सीन के सिंस मुस्लिम्स हैव द पावर, दे आर ओवरपावरिंग हिपोक्रेट्स एंड ट्राइंग टू किल देम, और उसके वजह से बाकी सारे लोग रेबेलियस नहीं बन जाए। इसलिए इस बार भी उसको जो है, हालांकि देखा जाए तो उसका सिन जो है इज वे टू हाई,
but it had been kept as it is, because definitely, inshallah, bidnillah, in the hereafter, he's doomed. He's definitely doomed. However, he became the object of criticism and humiliation because he was exposed. अब जो है उसकी मुनाफकत, उसकी दुश्मनी, उसकी कड़वाहट जो है वो लोगों के सामने expose हो चुकी थी. And a month later, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu engaged in the following conversation. Do you not see, Umar, that if I had him, Abdullah bin Ubay, killed, a large number of nobles would have furiously hastened to fight for him. However, now if I ask them to kill him, they would do so out of their own free will. अब हिकमत आपको अब पता चल रही है. Once Nabi sallallahu alaihi wasallam and Umar bin Khattab radhiyallahu anhu were talking, and they were talking in regards to Abdullah bin Ubay. तो उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त मैं इसको किल करने का वर्डिक्ट पास करता तो बहुत सारे जो नोबल्स हैं, they would have come to support him and to defend him. बट नाउ अल्लाह ताला ने बार बार एक इंसिडेंट के बाद दूसरे इंसिडेंट के बाद उसकी जो खबासत है उसको सबके सामने लाकर एक्सपोज कर दी. नाउ दीज नोबल्स ओनली आर रेडी टू किल हिम बाय देयर ओन हैंड्स. सो सुभान अल्लाह, कहते हैं ना सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी. Umar replied, I swear by Allah Azza wa Jal that the judgment of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is much more sound than mine. Abhi Umar radhiyallahu anhu is happy because if you remember in the previous incident, Umar radhiyallahu anhu was always on the verdict, kill him. But now he knows the hikmat, how Nabi sallallahu alaihi wasallam took the right decision. Because unki jo statesmanship thi, Nabi sallallahu alaihi wasallam as a leader, unki statesmanship jo thi, he was very wise. He not only used to think short term but long term. So alhamdulillah, it proved to be very beneficial, and Umar radiyallahu anhu accepted and confessed that he's swearing by Allah Azza wa Jal that the judgment of Nabi sallallahu alaihi wasallam is more sound than mine. एक और यहाँ पर mention नहीं किया गया, लेकिन मुझे एक आपको हदीस का बताना है. मिस्ता बिन अथला is one of the persons जिसको अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उनके वो relative है by the way, वो financially sound नहीं थे. तो उमर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु used to sponsor him, उनको फाइनेंशियली स्पॉन्सर किया करते थे. जब ये मिस्ता बिन अथला ये स्लैंडरिंग में इनका भी रोल आया, तब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने he vowed that he doesn't want to sponsor him. अब से उन्होंने कहा, इन्होंने मेरी बेटी के बारे में इस तरीके की लान तान की है, अब मैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना नहीं कंटिन्यू करूंगा. उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल की आयत नाजिल हुई थी, एंड तभी उनको बताया गया था कि आप अल्लाह की खातिर करते हैं, आप जो भी सिला रहमी करते हैं, सदका फी सबीलिल्लाह आप जो करते हैं, चैरिटी और व्हाटएवर गुड डीड्स यू डू, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू सिला रहमी, आप जो है वो अल्लाह की खातिर करते हैं. योर कॉम्पनसेशन लाइज विद अल्लाह अज़्ज़ा व जल. लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दैट मीन्स यू आर डूइंग द बार्टर एक्सचेंज, कि आपके साथ जो अच्छा है उसके साथ आप अच्छे हो, आपके साथ जो नहीं अच्छा उसके साथ आप नहीं अच्छे हो. सिला रहमी इन ट्रू सेंस मीन्स आप उसके साथ अच्छे हो जो आपके साथ नहीं अच्छा. इट इज नॉट अ बार्टर एक्सचेंज, एंड द कॉम्पनसेशन लाइज विद अल्लाह अज़्ज़ा व जल. तो जैसे ही वो आयत नाजिल हुई, सुब्हानअल्लाह, देन ही सेड he seek forgiveness from Allah Azza wa Jal, and then he continued supporting him. So that is also one of the main points that I wanted to mention here, and surprisingly that hadith is not here. Anyways, if you want, I will inshallah share it in the group as well. Going forward, delegations and expeditions. Following the invasion of Bani Mustaliq, a military expedition led by Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu was dispatched in the lands of Bani Kalb in Dumatul Jandal in Shaban 6th after Hijri. Before setting out, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam summoned Abdurrahman radiyallahu anhu and placed a turban on his head with his own hands, invoking Allah's blessing and giving him orders to act excellently during the war. He told him to marry the king's daughter if they obeyed him. Abdurrahman radiyallahu anhu stayed among those people for 3 days, invited them to Islam, and they responded positively. He then married the king's daughter, Tamadur bint al-Asbagh, and it is she who is Abu Salama, the mother of Abdurrahman's sons, Abu Salama. After the Mustalik invasion, military expedition चलने लगा अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु के लीडरशिप में, और वो बनी कलब दुमतुल जंदाल में जा रहा था शाबान की 6th आफ्टर हिजरी को. निकलने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनके सर पर जो है टर्बन, वो जो पग होती है वो रखी, पगड़ी उनके हेड पे अपने हाथों से, और उनको दुआ दी, और उनको फिर कहा कि इंशाल्लाह होपफुली ही विल डू वेरी गुड इन द वॉर. फिर उन्होंने कहा कि जब सब चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं तो वो जो किंग की डॉटर है उसके साथ शादी कर सकते हैं इफ दे अग्री. एंड अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु स्टेड देयर ऑलमोस्ट 3 days के लिए. फिर उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी, एंड सुभान अल्लाह सारे लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया. फिर उन्होंने परमिशन लेके उनकी किंग की डॉटर जो है तमादुर बिन्त अल असबाग से निकाह का
इरादा पेश किया, it was agreed. And she is the one who is known as Abu Salama, the mother of Abdurrahman's son, Abu Salama. In the same month and year, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu was dispatched at the head of the platoon to the inhabitants of Bani Saad bin Bakr in the place called Fadak. अभी उसी same time में Ali ibn Talib was going for another expedition. उन्होंने एक प्लाटून लिया और बनी साद बिन अबी बकर की तरफ, जो कि एक जगह है जिसका नाम है फदक, उधर पहुंचे. The Prophet learned that they were supporting the Jews by providing them with the force. The Muslim fighters would march during the day and conceal their camp at night. On their way, they captured an envoy of the enemy who admitted being sent to the Khaybar to offer its people support in return for their dates. He also informed them about their encampment. Ali and his companions raided it, captured 500 camels and 2,000 goats. But Banu Sa'd with their chieftain, Wabar bin Alim, had fled. ये दूसरा एक्सपीडिशन जो पहुंचा, और ये वो लोग थे जो ज्यूज को प्रोवाइड कर रहे थे फोर्स और मिलिट्री हेल्प के हिसाब से. तो मुस्लिम फाइटर्स जो है एज यूजुअल दे यूज्ड टू मार्च इन द डे और रात को जो है कैंप करते थे. तो ऑन देयर वे उन्होंने एक एनवॉय जो है एनिमी एनवॉय उसको कैप्चर किया जो खैबर की तरफ जा रहा था. एंड उन लोगों को वहां से बहुत अच्छी बूटी मिली. दे वर एबल टू कैप्चर अराउंड 500 कैमल्स और 200 बकरियां. लेकिन जो उनका चीफ था बनु साद, अपने चीफ्टन जो वबर बिन अलीम था, उसके साथ वो लोग बच के निकल गए. तीसरा एक्सपीडिशन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु के साथ डिस्पैच हुआ था वादी अल कुरा में रमजान में 6th after हिजरी. After the Fazara tribe made an assassination attempt on the Prophet's life, Salman bin al-Aqwa said, I went to him until we offered the Fajr prayer, after which he ordered us to begin the attack. अभी एक फजरा ट्राइब थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया था. तो दे वर ट्राइंग टू अटैक दिस गाइज. एंड सलमान बिन अल अक़वा जो है उन्होंने कहा आई वेंट विद हिम अंटिल वी ऑफर्ड फजर प्रेयर, और फिर उधर जाकर उन्होंने फजर की सलाह अदा की. एंड देन ऑर्डर ऑफ अटैक वाज गिवन. वी बिगेन एट द एनिमीज वाटरिंग and Abu Bakr radiallahu anhu was fighting while I saw a group of women and children. I was afraid that they would escape to the mountain, so I shot my arrow between them and the mountain. When they saw the arrow, they stopped. There was a woman among them who was wearing a leather garment named Qirfa. Her daughter was one of the prettiest Arab girls. So I took them to Abu Bakr radiallahu anhu and he gave me her daughter. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked about the daughter of Qira, and she was sent to Makkah in exchange for some Muslim captives. Qirfa was behind the attempts on the Prophet's life, but her plan backfired and the 30 horsemen were killed. अब ये हुआ कि ये जो फजरा ट्राइब है ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे, और सलमा बिन अल अक़वा बोलते हैं कि हम उनके पास गए थे, फजर की सलाह की और फिर हमको ऑर्डर हुआ कि अटैक करो. जब इन्होंने अटैक करना शुरू किया तो इनमें कुछ औरतें और बच्चे थे और वो लोग जो है पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगे. तो उन्होंने क्या किया, तीर फेंकना शुरू किया जो कि इन लोगों के और माउंटेन के बीच में पड़े. जैसे ही उन्होंने देखा कि तीर आ रहे हैं वो लोग वहीं पर ही रुक गए. फिर ये लोग उनके पास पहुंचे. एक वहां पर औरत थी जिसने लेदर का गारमेंट पहना हुआ था, उसका नाम था किरफा. अब ये किरफा की जो बेटी थी वो बहुत खूबसूरत थी, अरब क्लैन में बहुत प्रिटी गर्ल थी. तो फिर उन्होंने वो लड़की को लेके अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और उनको ये डॉटर दिखाया और अपनी हसरत पेश की कि वो शादी करना चाहते हैं उनसे. बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि इनकी बेटी को जो है वो एक्सचेंज किया जाए चंद मुस्लिम कैप्टिव्स जो है ना, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स लिए थे उनके एक्सचेंज में. तो ये एक्सचेंज कर दिया गया था. अब किरफा कौन है पता है? शी वॉज द वन हु वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रॉफिट्स असैसिनेशन, यानी जो अटेम्प्ट किया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, उसके पीछे दिस लेडी वॉज इन चार्ज. तो एनीवेज हर प्लान बैकफायर्ड और तकरीबन उनके 30 घोड़सवार जो है वो इस एक्सपीडिशन में किल हो गए थे. The expedition of Qurs bin Jabir al-Fihri al-Uraini occurred in Shawwal of the 6th after Hijri. अभी फोर्थ एक्सपीडिशन जो था वो कुर्स बिन जाबिर अल-फिहरी में गया था और जगह का नाम था उरैना, around 6th of Shawwal. Around Shawwal in 6th after Hijri. This was because a group from the Ukal and Ukraina tribes declared their Islam and stayed in Medina, but found its climate disagreeable. So they were asked to erect their tents in the pastures nearby, which they did, and they became healthy. अब ये उकल और उरैना के ट्राइब्स जो थे, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कबूल कर लिया था और ये मदीने में रह रहे थे, लेकिन वहां का जो वेदर है, क्लाइमेट जो है वो उनको सूट नहीं कर रहा था. तो उनको कहा गया था कि आसपास में जो पैस्चर्स हैं, जो ग्रीनरी है, वहां पर अपने टेंट्स को इरेक्ट कर लें, और उन्होंने फिर ऐसे ही किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत फिर रिस्टोर हो गई. देन दे अटैक्ड द प्रॉफिट्स शेफर्ड एंड किल्ड हिम
turned apostates from Islam and drove off the camels. लेकिन इन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने दगाबाजी की. इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शेपर्ड्स थे उनको किल किया और उनके वापस दोबारा से वो लोग जो है मुर्तद हो गए और कैमल्स लेके अपने दौड़ गए. The Prophet ﷺ sent a group of 20 Muslims led by Qurs bin Jabir al-Fihri radiallahu anhu on their track. They were brought and handed over to him. He had their hands and feet cut off, their eyes forced out in recompense for their behavior, and then they were thrown on the stony ground until they died. अब जैसे ही पता चला कि इन्होंने दगाबाजी की और ऐसे अपने शेपर्ड्स जो थे मुस्लिम्स उनको मारा और बहुत खुराफातें की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मुस्लिम आर्मी को भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ कुर्स बिन जाबिर अल-फिहरी रदियल्लाहु अन्हु कि उनका पीछा करो. ही वेंट देयर, उनको पकड़ के लेकर आए. फिर इनके लिए वर्डिक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया? इनके लिए हुक्म हुआ, इनके हाथ और पैर कट कर दिए गए, इनकी आंखें भी बाहर निकाल दी गई थी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, और उनको एक स्टोनी ग्राउंड पे फेंक दिया गया था जब तक कि वो मर ना गए. ये वही ग्रुप है, इधर मेंशन नहीं है लेकिन आई जस्ट लाइक टू मेंशन, ये वही ग्रुप है जिसमें अकॉर्डिंग टू द हदीस जब इनकी तबीयतें खराब हुई थी तो इन लोगों को कैमल यूरिन का जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया था. दिस आर द पीपल. और फिर उसके बाद उनकी तबीयतें जो हैं वो ठीक हुई थी. इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट. या इट इज पेज 447 अफशान. तो इनकी तबीयतें जो है वो रिस्टोर हुई थी. आई कैन इफ यू वांट आई कैन पुट दैट हदीस एज वेल. लेट मी मेक अ नोट. ऑलराइट. Biographers also reported that Amr bin Umayyah ad-Damri and Salama bin Abi Salama radiallahu anhu were sent to assassinate Abu Sufyan, the chief of Quraysh, who had sent a bidun to assassinate the Prophet. The two-man mission failed, but they killed 3 mushriks on the way. It is noteworthy that all the foregone invasions did not imply real bitter fighting, but were clashes of punitive military movements carried out to deter enemies who still had not surrendered to Islam. Biographers have also recorded that Amr bin Umayyah ad-Darmi और Salama bin Abi Salama were sent to assassinate Abu Sufyan. ये दोनों को भेजा गया था अबू सुफियान के कत्ल के लिए, जो चीफ था कुरैश का. Who had sent a bidun to, इसने जो है एक बिदून को भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए. The two-man mission failed. उन्होंने उसको अबू सुफियान को तो नहीं कत्ल किया, लेकिन 3 मुशरिक जो थे ऑन द वे वो मारे गए थे. It is noteworthy that all foregone invasions did not imply real bitter fighting, but were clashes. यानी प्रॉपर जंग की शक्ल नहीं थी, मगर छोटे छोटे एक्सपीडिशंस, छोटे छोटे इन्वेजन्स और छोटे छोटे क्लैशेस हो रहे थे, जिससे कि मिलिट्री मूवमेंट्स जारी थी और एनिमीज जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहे थे. लेकिन वो सारे एनिमीज जो कि अब तक इस्लाम को सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो यानी देखा जाए तो उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा था, बट एन ओपन वॉर या ओपन गजवा वाज नॉट टेकिंग प्लेस. Deep considerations on the development of the war circumstances reveal the continuous collapse of the morale among the enemies of the Islam, who had come to understand that they were no longer in a position to stop the Islamic call or weaken its active drive. Yani Quraysh had this idea, the Yahud had this idea, Biduns had this idea कि no matter whatever planning they do, whatever strategy they built up, लेकिन वो जो है मुस्लिम्स का मोराल जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. Islam is still spreading. Islam is still becoming stronger, military wise and ideology wise. It is spreading in all directions, and that is what the Quraysh were worried about. This state of affairs reached its climax, call or weaken its active drive. This state of affairs reached its climax with the Treaty of Al-Hudaybiyah, when the two confronting parties, believers and disbelievers, entered into a truce agreement that pointed markedly to the ever-growing power of Islam and unequivocally recorded the continuation of the heavenly religion in Arabia. अब ये उन्होंने देख लिया कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसके बाद वो जो उनका कैंपेन चला था नेगेटिव प्रोपगेशन का, एंड छोटे छोटे जगह पर वो भिड़ना चाह रहे थे, बट एवरी प्लेस दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट. Now the only thing that was left was getting into a truce, कि एक अक़द किया जाए. So the Treaty of Al-Hudaybiyah looked like the only solution. अब हम धीरे धीरे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूस है जिसका नाम है अल-हुदैबिया ट्रीटी, उसकी तरफ पढ़ रहे हैं. The circumstances of the Umrah of Al-Hudaybiyah. Arabia began to witness the large impressive sweep in favor of the Muslims, and the forerunners of the great conquest and success of the Islamic call began to gradually become more visible on the demographic horizon.
It was in the 6th Hijri after the Prophet in Medina had a dream in which he had entered the sacred sanctuary in Makkah in security with his followers and was performing the ceremonies of Umrah. Their heads were being shaved and hair was being removed. As soon as he informed some of his companions about the dream, to which they became extremely happy. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to get ड्रीम्स दैट यूज्ड टू बिकम रियलिटी. इट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स विद द प्रोफेट्स. यानी ये एक प्रोफेट या नबूवत की निशानी होती है कि इनके ड्रीम्स जो होते हैं वो रियल होते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, दिस इज अराउंड 6th आफ्टर हिजरी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको एक ख्वाब आया था कि ही इज एंटरिंग द सैंक्चुरी ऑफ मक्का एंड उनके साथ उनके फॉलोअर्स सहाबाज भी हैं और वो जो हैं उम्रा के रिचुअल्स कर रहे हैं. उनके जो सर हैं वो शेव हो रहे हैं, बाल उनके जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द उम्रा जो राइट्स हैं वो उन्होंने देखा कि वो और उनके सहाबाज परफॉर्म कर रहे हैं. व्हेन ही एक्सप्लेन दिस टू हिज कंपेनियंस, उनके साथ उन्होंने अपना ये ड्रीम शेयर किया, everybody became very happy because this is a sign that very soon inshallah they will be conquesting Makkah. The Muslims mobilized. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had his clothes washed, mounted his camel named Al-Qaswa, left Ibn Maktum, and according to some others, Numaila al-Laythi in charge of Medina, and marched out towards Makkah on Monday in the beginning of Zulqa'dah. अब उन्होंने Maktum को leadership दी for Medina and to Numaila al-Laythi radhiyallahu anhu in charge of Medina because he is traveling to Makkah. उन्होंने अपने धुले हुए अच्छे कपड़े पहने, अपने कैमल को माउंट किया. अल-क़स्वा is the name of his camel. और ये दोनों इंचार्ज जो है इब्न मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु एंड नुमैला अल-लैथी रदियल्लाहु अन्हु मदीना का इंचार्ज करके he started off Makkah on a Monday in the beginning of Zulqa'dah. As the head of the 14 or 1500 Muslims, including his wife Salma रदियल्लाहु अन्हा, कितने लोग थे उनके साथ एक काफले में? तकरीबन 14 to 1500 मुस्लिम्स. और इस बार उनके साथ कौन सी वाइफ चली थी? सलमा रदियल्लाहु अन्हा. He was also accompanied by some of his desert Bedouins in the area, although many of them stayed behind. They carried no weapons with them except the sheathed swords of travelers, since they had no intention of fighting. अब इनका कोई जंग का इरादा नहीं था. So there were no armors, there was no weapon, there is no things which is in the preparation of a war. ये कोई वॉर वाला काफिला नहीं था. इसीलिए उन्होंने सिर्फ बिदून्स और अपने सहाबाज जो थे उनको साथ में लिया. एंड देयर वर नो वेपन्स, बट उनकी जो जस्ट फॉर द सिक्योरिटी सेक थोड़ी सी तलवारें साथ में थी जो कि ट्रैवलिंग में वो अक्सर लेते थे. बाकी कोई इनका इरादा जंग का या झगड़े का नहीं था. Heading for Makkah. As they approached Makkah, they stopped at a place called Zul Hulayfa, where he ordered that the sacrificial animal be garlanded and all the believers enter into the state of ihram. On their way, कौन सी एक जगह पे वो रुके? जुल हुलैफा, जहां पर जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स था उसको थोड़ा सजाया गया और सब जो है स्टेट ऑफ इहराम में आ गए. विद द पिलग्रिम्स ड्रेस वुड अफोर्ड देम सेफ्टी फ्रॉम एनी अटैक्स. और जब वो इहराम की स्टेट में आ जाते हैं तो उनको देखकर लोग फिर समझ जाते हैं कि ये लोग जो है उम्रे के लिए जा रहे हैं, इनका कोई अटैक्स का इरादा नहीं है. So it is a kind of a security and a sign for others to know that they are going for heading for Umrah. He dispatched a surveyor to collect any news of the enemy. The man came back and informed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that a large number of people from a number of tribes were gathered with Ka'ab bin al-Lu'ay to oppose him, and that the road of Makkah was completely blocked. अब एक आदमी उनके पास आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया कि एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन गैदर्ड, एक बड़ी ट्राइब गैदर हुई है काब बिन लुए के साथ में अपोज करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मक्का का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर रहे हैं. The Prophet consulted his companions, who were of the opinion that they would not fight anyone unless they were stopped from performing the pilgrimage. अभी as usual नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with his companions उन्होंने अपनी काउंसिल मीटिंग बुलाई और कहा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. It was agreed upon that कोई झगड़ा नहीं होगा जब तक कि उनको उम्रा करने से कोई रोके नहीं, तब तक कि they will not initiate a fight. The Quraysh attempt to block the Muslims from reaching the Kaaba. The Quraysh on their part held a meeting in which they discussed the entire situation and decided on resisting the Prophet's mission at all cost. 200 horsemen led by Khalid bin al-Walid were dispatched to take the Muslims by surprise during Dhuhr. However, the rules concerning the fear prayer were revealed. Khalid and his men missed their opportunity because the Muslims avoided marching on that route and decided to follow a rugged one. Khalid hurried back to Quraysh to brief them on the latest situation. अब जहां पर मुस्लिम्स की काउंसिल मीटिंग हुई वहीं पर ही कुरैश की भी काउंसिल मीटिंग हुई. उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो एक एक्सपीडिशन या एक ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय खालिद बिन वलीद उसके साथ डिस्पैच करेंगे और बाय जोहर टाइम, आफ्टरनून टाइम, सरप्राइजिंगली
मुस्लिम्स पे अटैक करेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने रूट ही चेंज कर दिया अपना। उन्होंने एक रफ रगिड रॉकी वन जो माउंटेनियस रास्ता था वो लेकर वो पहुंचे। एंड देन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद का प्लान कैंसिल, यानी ऑलमोस्ट डंप इसमें चला गया। एंड ही केम बैक टू कुरैश इन्फॉर्मिंग अबाउट द लेटेस्ट सिचुएशन, changing direction. When the Muslims reached an area called Thaniyatul Murar, the Prophet's camel stumbled and knelt down and was too stubborn to move. So the Prophet Muhammad ﷺ swore that he would willingly agree to any plan the enemy proposed that would revere Allah's sanctuary. He then reprovingly spurred his camel and it leapt up. They resumed their march and came to pitch their tents at the farthest part of Al-Hudaybiyah, beside a well that contained little water. The Muslims reported their thirst to the Prophet Muhammad ﷺ, who took an arrow out of his quiver and placed it in the ditch. Water immediately began to gush forth and his followers drank to their fill. अब ऐसा हुआ कि एक दूसरे इलाके में पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला, जिसका नाम था थनियातुल मुरार। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैमल जो है वो स्टम्बल करके नील डाउन किया और वहां से हिलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक एज कसम उठाई कि वो विलिंगली ये लोगों की एनिमी का जो प्लान है उसको अग्री कर देंगे, जब तक कि ये जो अल्लाह की सेंचुरी है, जो हुर्मत वाली जगह है, उसमें कोई खून खराबा ना हो। यानी ही इज रेडी टू अग्री टू देयर टर्म्स। फिर उन्होंने अपने कैमल को थोड़ा सा मूव किया, इमीडिएटली द कैमल स्प्रंग अप। उसके बाद वो लोग जहां पर मार्च कर रहे थे, वहां पर जहां पर इन्होंने टेंट्स लगाया था, एक वेल के करीब में लगाया था, जो फर्देस्ट पार्ट अल हुदैबिया के थोड़ा दूर था। अब ये वेल में जो है पानी बहुत कम था, तो मुस्लिम्स ने जो है रिपोर्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो प्यासे हैं, उन्हें पानी की हाजत है, और इधर जो वेल है उसमें पानी इतना नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने एक तीर लिया और उसको प्लेस्ड, वो जो वेल था जिसमें पानी नहीं था, जो डिच था, उसके तरफ फेंका। एंड दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स, वाटर स्टार्टेड गशिंग। वहां से जो सूखा हुआ बहुत थोड़ा पानी था जो वेल में, इमीडिएटली वो फुल ऑफ वाटर हो गया और बहुत सारा पानी वहां से जारी हो गया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से ड्रिंक किया और फिल किया अपने साथ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉर्डेड मिरेकल्स। Budayl mediates between Allah's Messenger ﷺ and the Quraysh. After the Prophet was at ease, Budayl bin Warqa al-Khuzai came with some people of the Khuzah tribe to advise the Prophet Muhammad ﷺ. They asked him for what reason he had come for. The Prophet replied that his intention was not for war. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुदैल बिन वर्का अल खुज़ै आया, जो खुज़ा ट्राइब का था। उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ एडवाइस या सलाह मशवरा करना शुरू किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फॉर्म किया कि ये इस बंदे का इरादा कोई वॉर का नहीं है। He sallallahu alaihi wasallam said, I have no other design but to perform Umrah in the sacred sanctuary. Should the Quraysh embrace the new religion, as some people have done, they are most welcome. But if they stand in my way or stop the Muslims from performing the pilgrimage, I will surely fight them to the last man, and Allah's order must be fulfilled. अब ये जो बंदा था उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक्सप्रेस किया फीलिंग्स कि मेरा इरादा कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट हियर, मैं सिर्फ उम्रा करने के लिए आया हूँ, और अगर कुरैश हमारे जो दीन इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, जैसे दूसरों ने किया, हम एट पीस रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने हमें उम्रा करने से रोका या हमारे बीच में आए तो डेफिनेटली हम उनके साथ जंग करेंगे टिल द लास्ट मैन, और अल्लाह का जो ऑर्डर है वो फुलफिल करेंगे। Budayl carried the message to the Quraysh, who were hesitant to accept the unwanted news. They then dispatched Mikraz bin Hafs to meet Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On seeing him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he was a treacherous man. He was given the same message to communicate to his people. अब ये जवाब बुदैल बिन वरका का जवाब सुन के कुरैश राजी नहीं हुए, वो थोड़ा सा अपसेट हुए। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और मिकराज बिन हफ्स को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात करने के लिए। जब ये इसको मिकराज बिन हफ्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये दगाबाज धोखेबाज आदमी है, और उसको भी उन्होंने सेम मैसेज ही कम्युनिकेट करने के लिए कहा। सो थिंग्स डिडंट चेंज, चाहे एक को भेजे दूसरे को भेजे, कोई भी मैसेंजर आ रहा है, जो मकसद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंटेंशन था वो सेम ही रहा, and he was very firm on that. The envoys of Quraysh. He was followed by another envoy named Al-Hulais bin Al-Qama. He was very much impressed by the spirit and devotion that the Muslims had for the sacred Kaaba. He went back to his men and warned them against stopping Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions from revering Allah's house at the risk of breaking his alliance with them. अब ये जो तीसरा बंदा था अल-हुलैस बिन अल-अकामा, वो बहुत इम्प्रेस हुआ मुस्लिम्स एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिट और डिवोशन को देखकर कि ये लोग के अंदर काबा को लेकर कितनी अच्छी हुर्मत है।
तो उसने जाकर कुरैश को वापस से वार्निंग दिया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबास को उम्रा करने के लिए मत रोको, इससे हमारे जो अलायंस, जो थोड़ी बहुत हमारी यानी थोड़ी बहुत जो हमारे लॉन्ग बोलते हैं ना बहुत लाइट और ब्लीक सा रिश्ता जो है वो भी खराब हो जाएगा. Hulas was succeeded by Urwa bin al-Masud al-Thaqafi to negotiate with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the course of the discussion, he said to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, have you gathered around yourself mixed people and then brought them against your kith and kin in order to destroy them? यानी अब वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल-हुलैस बिन अल-क़ामा और उनवा बिन मसीद अल-थक़ाफ़ी ये दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं. वो कह रहे हैं तुमने अपने यानी बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट 1400 टू 1500 का काफिला था ये. कहते हैं आपने इतने सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया है, इनको मिक्स किया है, तुम अपने ही लोगों के साथ लड़ने के लिए और उनको कत्ल करने के लिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे कुरैश जो है वो उनकी फैमिली, उनके क्लैन, उनकी कम्युनिटी वाले थे. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या थे, मदीना वाले लोग, आसपास के बिदून्स और मुहाजिर अंसार्स मिक्स थे. तो कहते हैं आपने इन सबको हमारे अपने ही घर वालों के अगेंस्ट आपने इकट्ठा किया है ताकि आप उनको डिस्ट्रॉय करो. I think I will see you deserted by these people tomorrow. और वो ये भी ऐड कर रहे हैं कि ये जो आपने गैरों को अपने पास इकट्ठा किया है ना, ये लोग आपको छोड़ देंगे कल. At this point of time, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu stood up and expressed his resentment. While he was speaking to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he grabbed the Prophet's beard. Al-Mughira bin Shuba was standing beside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was wearing a helmet with a sword at his side. He hit Urwa's hand with the scabbard of his sword and warned him not to touch the Prophet's beard. Here the envoy of Quraysh remarked in annoyance and referred to the latter treacherous act of killing his companions and looting them before he embraced Islam. अभी ये डिस्कशन चल रही है इनकी और धीरे धीरे कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. जब उसने ये कहा कि ये दूसरे जो गैर लोग हैं आपको छोड़ देंगे, उस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने यानी ही वाज नॉट हैप्पी विद हिज स्टेटमेंट. और फिर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे तभी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को ग्रैब किया. इस पर अल-मुग़ीरा बिन शुबा जो बाजू में उनके खड़े थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने हेलमेट और पहनी हुई थी और उनके हाथ में स्वॉर्ड थी, तो उन्होंने उर्वा के हाथ को जो है वो स्वॉर्ड का जो स्कबार्ड है, जो एंड है, उससे हिट किया और वार्निंग किया कि टच मत करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियर्ड को टच मत करो. अब यहाँ पर जो कुरैश का जो एनवॉय था उन लोगों ने रिमार्क किया अनॉयंस में कि ये लोग जो हैं इन्होंने कितनी बुरी तरह से मुस्लिम्स को कंपेनियंस को किल किया था, उनको लूट किया था बिफोर दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम, यानी वो उनको याद दिला रहे हैं पिछली बातें. Meanwhile, Urwa during his visit to the Muslim camp closely watched the immeasurable love and respect that the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam showed towards him. उर्वा जो है जब मुस्लिम कैंप्स को अटेंड किया था तो उसने बहुत करीब से देखा था किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और जो साथी हैं वो उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना फॉलो करते हैं उनको, और उतना प्यार जो है उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. तो जब वो कुरैश के पास पहुंचा और कॉन्वॉय का जो उसने इंप्रेशन बताया लोगों के ऊपर, people could not leave the Prophet sallallahu alaihi wasallam under any circumstances. यानी उसने बताया कि इनके जो सहाबाज हैं, इनके जो लोग हैं, वो उनको किसी भी कीमत पे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनका साथ जो है कभी नहीं छोड़ेंगे. He expressed his feelings in the following words: I have been to Kosares, Caesars and Negus in their kingdoms, but never have I seen a king among a people like Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. वो बता रहा है उनको कि मैं सीजर्स के पास, कोसेरोस के पास, नीगस के पास, यानी ये डिफरेंट किंगडम्स में मैं गया हूँ और मैंने लोगों को उनकी रियायत के साथ देखा है, लेकिन कोई भी रियाया अपने किंग को इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट और इतना एडमिरेशन नहीं दिखाती जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सहाबा दिखाते हैं. इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत करते हैं. अगर वो वुजू करते हैं तो वो जो पानी है वो ग्राउंड पे गिरने नहीं देते हैं. अगर वो दे कम्पीट फॉर द म्यूक, यानी अगर वो खांसते हैं तो वो उनके बलगम को भी कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहे होते हैं. अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो उनके सामने अपनी वॉइसेस को लोअर कर देते हैं. They would lower their voices. They will not abandon him for anything in any case. He offers you a reasonable plan, so do what you please. अब वो कुरैश को बता रहे, कहते हैं कि जब इतना एहतराम है उनका कि जब वो वुजू करते हैं तो उनका पानी गिरने नहीं देते हैं, जब वो खांस रहे होते हैं तो वो लोग उनके बलगम के पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपने उनकी एक एक चीज को जो है ना जैसे कि बहुत मोहतरम समझ के और बहुत पाक समझ के जमीन को नहीं टच करने देते, अपने हाथों में उनको झेलते हैं. कहते हैं वो उनके सामने अपनी आवाजें पस्त कर देते हैं. तो वो लोग जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और इनकी प्यार, इनका रिस्पेक्ट, इनका पावर जो है कभी भी कम नहीं होगा. तो वो उनको कुरैश को कह रहा है कि जो भी वो आपके साथ रीजनेबल प्लान कर रहे हैं उस पे अग्री कर जाओ,
क्योंकि मैदान जंग में आप उनको हरा नहीं सकते, ये लोगों की मोहब्बत आप उनके दिलों में कम नहीं कर सकते, तो आप जो है शराफत से उनकी ट्रीटी जो भी वो कहते हैं उसको मान जाओ। Allah subhanahu wa ta'ala prevented them from treachery. Seeing a great tendency towards reconciliation among the chiefs, some younger, irresponsible, and hot tempered Quraysh devised a wicked plan that would hold back the peace treaty. They decided to enter into the camp of Muslims and intentionally begin a clash which would be the fuse to trigger a war. 70 or 80 of them left at night for the Muslim camp and descended from the mountain Tanim. Muhammad bin Maslama, radiallahu anhu, chief of the Muslim guards, were able to capture them, but in view of the far-reaching imminent results about to be achieved, the Prophet ﷺ set them free. अब नेक्स्ट मूव क्या था? जो चीफ थे वो रिकंसाइल करने के लिए अभी भी राजी नहीं थे, और कुछ जो हॉट टेम्पर्ड, इररिस्पॉन्सिबल यंगर कुरैश थे, उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा ये पीस ट्रीटी को हम कंप्लीट होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम कैंप को एक ग्रुप बना के एंटर करने का प्लान किया, जो कि बीच में यानी ऐसे कोई फितना बर्पा करेंगे जिससे कि जंगी हालत हो जाए। तो उन्होंने 70 से 80 आदमियों को रात को मुस्लिम कैंप पे भेजा, और वो जो है एक तनीम माउंटेन है उसको डिसेंड करते हुए वो मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु जो चीफ थे, यानी मुस्लिम कैंप के जो चीफ थे वो मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु थे, वो गार्ड के जो लीडर थे उनको कैप्चर करने की कोशिश कर दी। बट इन व्यू ऑफ फार रीचिंग इमिनेंट रिजल्ट्स, यानी ये 70 से 80 जो यंग कुरैश आए, इन लोगों की कोशिश थी कि एक छोटा सा वॉर क्रिएट करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम सिक्योरिटी हेड थे इन्होंने इनको पकड़ लिया। और इससे क्या हुआ, इससे सबसे पहले तो वही नाजिल हुई फ्रॉम सूरा नंबर 48 वर्स नंबर 24, एंड ही इट इज हु हैज withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah after he had made you victors over them। यानी ये कितना भी प्लान कर लें, पिछले भी हम लोगों ने कितनी दफा देखा है कि असैसिनेशन की प्लान बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की प्लान बनाए, जो भी लोग छुपके छुपाते करते रहे हैं प्लॉट्स और षड्यंत्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के थ्रू या इंस्पिरेशन के थ्रू अल्लाह ताला उनको आगाह कर देते हैं। एंड मुस्लिम्स देमसेल्व्स वर वेरी कॉन्शियस, जैसे कि अभी ये 70-80 आदमी थे, लेकिन मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु जो चीफ थे उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, यानी इनके इरादे कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पाते थे। डायरेक्टली अल्लाह अज़्ज़ वजल की वही नाजिल हो जाती थी, और इन लोगों के फेवर के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह अज़्ज़ वजल यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम आर्मी, और कुरैश के जो भी इरादे होते थे बड़े छोटे व्हाटएवर इट यूज्ड टू बी, वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु इज सेंट एज अ मैसेंजर टू द कुरैश। अभी ये सिर्फ आप देखें कि ये सिर्फ जर्नी चल रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ उम्रा करने जा रहे हैं ऑन अ पीसफुल नोट, लेकिन फिर भी कुरैश जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट एन उम्रा, ये उम्रे की देखा जाए तो उम्रे की शक्ल में कहीं ना कहीं जाके मक्का कॉन्क्वेस्ट होना है। तो उनकी कोशिश चलती जा रही है, दे आर ट्राइंग टू सेंड नेगोशिएटर्स, वो बारी 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 कुछ किसी ना किसी को भेज रहे हैं विद द मैसेज कि कुछ सुलह हो जाए या कुछ ऐसा तरीकाकार बन जाए, बीच का रास्ता ऐसा निकल जाए कि इन लोग जो हैं ये लोग दीन इस्लाम को कबूल भी ना करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की भी उनमें ताकत आ जाए। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो सारे प्लान्स जो है फेल हो रहे हैं। अब मुस्लिम आर्मी की तरफ से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु एज अ मैसेंजर जा रहे हैं कुरैश के पास। Time passed and negotiations continued, but with no results. The Prophet asked Umar radiallahu anhu to go on his behalf to the nobles of Quraysh. However, Umar excused himself on account of the personal enmity of Quraysh towards him. Additionally, he had no influential relatives in the city who would shield him from the danger. He advised sending Uthman bin Affan radiallahu anhu. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसको कह रहे थे, उमर रदियल्लाहु अन्हु को कह रहे थे कि कुरैश के पास जाके आप मैसेज पहुंचाओ, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको एक्सक्यूज करवाया क्योंकि पर्सनल एनिमिटी थी उनकी कुरैश के साथ। सेकेंडली, उनका कोई रिलेटिव नहीं था उस सिटी में कि अगर कुछ खतरा हो, बिकॉज कुरैश आपको पता है वो कभी भी दगाबाजी करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके साथियों के साथ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं है जो मुझे शील्ड करे या प्रोटेक्ट करे। फिर उन्होंने एडवाइस दी कि आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजें क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है मक्का में। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु went to Abu Sufyan and other chiefs and told them that the Muslims had come only to visit and pay their homage to the sacred house, to worship there with no intention to fight. अभी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान के चीफ और दूसरों को यही बताया कि
हमारा इरादा जो है वो सिर्फ उम्रा करने का है, ना तो कोई जंग करने का है, ना तो कोई फाइट करने का है, कोई इंटेंशन इस तरीके का नहीं है. He was also asked to call them to Islam and give glad tidings to the believers in Makkah, women and men, that the conquest was approaching and Islam would surely prevail because Allah Azza wa Jal would truly establish his religion in Makkah. उन्होंने ये भी उनको इन्फॉर्म किया कि उम्रा करने के साथ साथ उनका जो मेन काम है, द कोर वर्क ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विच इज दावा, कि द कॉल टू इस्लाम, और उनको खुशखबरियां दें कि अगर आप दीन इस्लाम को कबूल करते हैं तो आपके लिए क्या क्या नेमतें हैं. और वो जो है ये मैसेज भी मक्का के लोगों को, आदमियों को, औरतों को ये बताना चाहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट जो है फाइनली विल हैपन, इस्लाम विल प्रिवेल. ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का प्लान है कि उनका रिलीजन जो है मक्का में फैलेगा, इस्टेब्लिश होगा. तो उनको आगाह करें, या तो आप मुसलमान होके ये जो अल्लाह की नेमतें हैं वो हासिल करें, या फिर इवेंचुअली जब कॉन्क्वेस्ट होगा तो उसके जो अंजाम होंगे उसे झेलें. तो उम्रा करना और ये मैसेज कन्वे करना, ये दो सोल पर्पसेस हैं. Uthman radiallahu anhu also assured them that after the performance of the ceremonies they would depart peacefully. उन्होंने ये भी बताया कि जब ये हो जाता है, उम्रे की सारी रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो पीसफुली, बहुत सुकून से, आराम से वहां से निकल जाएंगे. But the Quraysh were inflexible and were not prepared to grant them permission to visit the Kaaba. लेकिन कुरैश जो है वो बहुत रिजिड हो गए. उन्होंने कहा कि हम इन्हें परमिशन नहीं देंगे काबा को विजिट करने का. They however offered Uthman radiallahu anhu the permission to perform umrah if he so desired. अब वो कहते हैं कि अगर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु करना चाहते हैं उम्रा तो उनको हम अकेले को परमिशन दे देते हैं, लेकिन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने डिक्लाइन कर दिया ऑफर. वो कहते हैं मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, आई कैन नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी व्हाइल द प्रॉफिट इज डिनाइड ऑफ इट. कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इनकार कर रहे हो तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकता हूँ. The Muslims anxiously waited for the arrival of Uthman radiallahu anhu with mixed feelings of fear and anxiety, but his arrival was considerably delayed and foul play was suspected on the part of the Quraysh. अभी मुस्लिम्स जो है वो एंशियसली वेट कर रहे हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु क्या न्यूज़ लेकर आएंगे. तो उनके दिल में जो है मिक्स फीलिंग्स है, फियर है, एंजाइटी है, लेकिन उनकी जो अराइवल है वो डिले हो गई बिकॉज कुरैश के जो फाउल प्लान्स थे वो चल रहे थे. So we are about 3:03, so it's time to end the session. अगर कोई question है, it's an open forum. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.